शौहर से बदतमीजी की है, वो घर छोड़ के जा रहा है। तुम ही समझाओ इसे। बीवी ने ऐसा क्या कह दिया कि ये बात सबके सामने करनी पड़ रही है? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मेरे बाप की दौलत, मेरे बाप की जमीनें, हिसाब दो। रोज रोज इस तरह की बातें नहीं सुन सकता हूं। शौहर हूं, मुलाजिम तो नहीं हूं ना। वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब्बा की जो बची कुची जमीनें हैं, हम लोग गुजारा कर लेंगे। मैं बात करता हूँ। एक मिनट में। तुम्हारा हस्बैंड है यार, और जाग क्या हो गया तुम्हें? इतने ताने। और चाचा जान हमारे बड़े हैं। सही कह रहे हो? कैसे सह पाता होगी ये सारी बातें? तुम दोनों की शादी इस घर में इसीलिए कराई गई थी ताकि दोनों बहनें घर में रहें, नजरों के सामने रहें। इनसे तुम इस तरह बात नहीं कर सकती हो। ये तुम कह रहे हो जिनको तुमने बाबा की जिंदगी में बिजनेस से दूर कर दिया था? तुमने उन पे एतमाद नहीं किया, तो हम अपनी जमीनों के मामले में उन पे एतमाद क्यों करें? मैं गलत था। मेरी गलतफहमी थी सरासर। हमारे घर के ही लोग हैं ये। अगर जायदाद में से कुछ ले लेंगे तो क्या हो गया? हमारे अपनों ने ही तो इस्तेमाल करना है सब कुछ। अब हमारे चचा के दो ही बेटे हैं, दोनों हमारे घर के दामाद हैं। सारा पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होना है, बस। घर का पैसा घर में ही तो रहेगा। हम इस तरह इनसे बात नहीं कर सकते हैं। तुम ये सोचो, मेरी गैर मौजूदगी में हमारा माल किसने संभाल के रखा? अगर हमारे चचा ना होते तो हमारा माल तो कुत्ते खा जाते। शौहर से बदतमीजी की है, वो घर छोड़ के जा रहा है। तुम ही समझाओ इसे। बीवी ने ऐसा क्या कह दिया कि ये बात सबके सामने करनी पड़ रही है? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मेरे बाप की दौलत, मेरे बाप की जमीनें, हिसाब दो। रोज रोज इस तरह की बातें नहीं सुन सकता हूं। शौहर हूं, मुलाजिम तो नहीं हूं ना। वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब्बा की जो बची कुची जमीनें हैं, हम लोग गुजारा कर लेंगे। मैं बात करता हूँ। एक मिनट में। तुम्हारा हस्बैंड है यार, और जाग क्या हो गया तुम्हें? इतने ताने। और चाचा जान हमारे बड़े हैं। सही कह रहे हो? कैसे सह पाता होगी ये सारी बातें? तुम दोनों की शादी इस घर में इसीलिए कराई गई थी ताकि दोनों बहनें घर में रहें, नजरों के सामने रहें। इनसे तुम इस तरह बात नहीं कर सकती हो। ये तुम कह रहे हो
جن کو تم نے بابا کی زندگی میں بزنس سے دور کر دیا تھا. تم نے ان پہ اعتماد نہیں کیا تو ہم اپنی زمینوں کے معاملے میں ان پہ اعتماد کیوں کریں؟ میں غلط تھا. میری غلط فہمی تھی سراسر. ہمارے گھر کے ہی لوگ ہیں یہ. اگر جائیداد میں سے کچھ لے لیں گے تو کیا ہو گیا؟ ہمارے اپنوں نے ہی تو استعمال کرنا ہے سب کچھ. ہمارے چچا کے 2 ہی بیٹے ہیں, دونوں ہمارے گھر کے داماد ہیں. سارا پیسہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا ہے, بس. گھر کا پیسہ گھر میں ہی تو رہے گا. ہم اس طرح ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں. تم یہ سوچو, میری غیر موجودگی میں ہمارا مال کس نے سنبھال کے رکھا؟ اگر ہمارے چچا نہ ہوتے تو ہمارا مال تو کتے کھا جاتے. شوہر سے بدتمیزی کی ہے, وہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے. تم ہی سمجھاؤ اسے. بیوی نے ایسا کیا کہہ دیا کہ یہ بات سب کے سامنے کرنی پڑ رہی ہے؟ تم سے بات کر رہا ہوں میں. میرے باپ کی دولت, میرے باپ کی زمینیں, حساب دو. روز روز اس طرح کی باتیں نہیں سن سکتا ہوں. شوہر ہوں, ملازم تو نہیں ہوں نا. وہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ابا کی جو بچی کچی زمینیں ہیں, ہم لوگ گزارا کر لیں گے. میں بات کرتا ہوں. 1 منٹ میں. تمہارا ہسبینڈ ہے یار, اور جا کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنے تانے. اور چچا جان ہمارے بڑے ہیں. صحیح کہہ رہے ہو. کیسے سہ پاتا ہوگی یہ ساری باتیں؟ تم دونوں کی شادی اس گھر میں اسی لیے کرائی گئی تھی تاکہ دونوں بہنیں گھر میں رہیں, نظروں کے سامنے رہیں. ان سے تم اس طرح بات نہیں کر سکتی ہو. یہ تم کہہ رہے ہو جن کو تم نے بابا کی زندگی میں بزنس سے دور کر دیا تھا. تم نے ان پہ اعتماد نہیں کیا تو ہم اپنی زمینوں کے معاملے میں ان پہ اعتماد کیوں کریں؟ میں غلط تھا. آنے والی قسط ڈرامہ سیریل شیر کی نہایت ہی سنسنی خیز ہونے والی ہے, کیونکہ بدعنوان ایک نہایت خطرناک چال چلنے جا رہا ہے. بدعنوان کو یہ حقیقت معلوم ہو چکی ہے کہ فجر شیر کی سب سے بڑی کمزوری ہے, اور اگر شیر کو ختم کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے فجر کو راستے سے ہٹانا ہوگا. اسی مقصد کے تحت بدعنوان نے فجر کو قتل کرنے کا کانٹریکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فجر واقعی مار دی جائے گی یا شیر وقت پر پہنچ کر اسے بچا لے گا. دوسری طرف فجر نہ صرف اپنی گھر والوں سے ناراض ہو کر نکل آئی ہے بلکہ شیر سے بھی دوری اختیار کر لی ہے. وہ اب کسی صورت شیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس کا خاندان اس رشتے کے لیے راضی نہیں. اسی کشمکش میں فجر ہسپتال میں داخل ہو گئی ہے اور وہی رہنے لگی ہے, لیکن شیر نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ہر حال میں فجر کا ساتھ رہے گا, کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ فجر کی جان خطرے میں ہے, نہ صرف اپنے والد کی طرف سے بلکہ خود شیر کے چچا بدعنوان کی طرف سے بھی. شیر نے ایک بڑی چال چلی تھی کہ رنگون والا اور بدعنوان آپس میں الجھ کر ختم ہو جائیں, لیکن حالات نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے. جیسے ہی فجر ہسپتال میں شفٹ ہوتی ہے, شیر بھی اس کے پیچھے پیچھے
रहता है। फजर शेर को समझाती है कि इसका इस तरह अस्पताल में पीछे आना इसके काम में रुकावट डालेगा और लोग भी हैरान होंगे, इसलिए इसे चाहिए कि वो वापस चले जाए। मगर शेर बजिद है कि वो फजर को तनहा नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ अचानक खबर आती है क्योंकि रंगून वाला एक ट्रक हादसे में मारा गया है, बल्कि इसी तरीके से जैसे शेर और इसके वाल पर हमला किया गया था। शेर समझ जाता है कि इन सब हादसा के पीछे एक ही हाथ है और वो हाथ बदल ज़मान का है। अब बदल ज़मान इस बात से परेशान है कि शेर सच्चाई तक ना पहुंच जाए, इसलिए वो फ़ौरन फजर को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी करता है। फजर पर हमले के नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो जाती है और शेर इसे अस्पताल पहुंचाता है, लेकिन शेर इस बार फजर को मरने नहीं देगा, बल्कि पहले से ज़्यादा ताकत के साथ अपने दुश्मन का पीछा करेगा। सबूत इकट्ठे करने के बाद शेर को यकीन हो जाएगा कि फजर पर हमले और अपने वालिद के कत्ल के पीछे बदज़मान ही है। इस मौके पर शेर के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और बदज़मान को अपने हाथों से ख़त्म करने का फ़ैसला करेगा। अब देखना यह है कि क्या शेर वाकई फजर को बचा पाएगा और बदज़मान को अंजाम तक पहुंचा सकेगा, या कहानी कोई नया रुख मोड़ इख्तियार करेगी। तो नाज़रीन, अब कहानी मज़ीद दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि फजर पर हमले के बाद शेर का जुनून और बढ़ जाएगा। फजर अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होगी, लेकिन शेर एक लम्हे के लिए भी इसके पास से हटने को तैयार नहीं होगा। दूसरी तरफ बदज़मान इत्मीनान से ये सोच रहा होगा कि फजर के मरने के बाद शेर खुद ही टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही शेर को सबूत मिलना शुरू होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि असल कातिल बदज़मान है। राजदान भी शेर के साथ खड़ा होगा और दोनों मिलकर रंगून वाले की मौत, शेर के वालिद के कत्ल और फजर पर हमले की कड़ियाँ जोड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ शेर को ये एहसास होगा कि बदज़मान को कानून के हवाले करने के बजाय अगर वो खुद अपने हाथों बदला ले तो ज़्यादा सुकून मिलेगा। दूसरी तरफ फजर होश में आकर शेर को फिर से समझाने की कोशिश करेगी कि बदले की आग में जलकर वो अपने आप को मज़ीद नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन शेर का गुस्सा अब किसी सूरत कम होने वाला नहीं होगा। कहानी में एक नया मोड़ तब आएगा जब बदज़मान शेर को धोखा देने के लिए अपने किसी आदमी को कुर्बानी का बकरा बनाकर पुलिस के हवाले करेगा ताकि असल कातिल बच निकले, लेकिन शेर के दिल को तसल्ली नहीं होगी और इस खेल को समझ जाएगा। इसके बाद शेर बदज़मान का पीछा करेगा और ये तय करेगा कि फैसला सिर्फ मौत या ज़िंदगी का होगा। नाज़रीन, अब देखना यह है कि फजर की दुआओं का असर होगा या शेर अपनी ज़िद पर कायम रहते हुए बदज़मान का खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। ये आने वाली किस्से नाज़रीन के लिए नहायत सनसनीखेज़ और जज्बाती मनाज़िर से भरपूर होंगी। तो नाज़रीन, अब आने वाली किस्त में शेर की ज़िंदगी एक और इम्तहान में दाखिल होगी। जैसे ही फजर पर हमले की खबर पूरे शहर में फैलती है, फजर के घर वाले मज़ीद सख्ती से शेर को कसूरवार ठहराते हैं। वो समझते हैं कि अगर शेर फजर से दूर रहता तो आज फजर पर यह नौबत ना आती। दूसरी तरफ शेर के लिए यह सिर्फ दुश्मनी का मसला नहीं रहा, बल्कि अब ये इसके दिल और मोहब्बत का सवाल बन गया है। शेर कसम खाता है कि चाहे पूरी दुनिया इसके ख़िलाफ़ हो जाए कि फजर की हिफाजत ज़रूर करेगा। तो नादिम, बदज़मान को गले बदज़मान को लगेगा कि फजर के ज़ख्मी होने से शेर का हौसला टूट जाएगा, लेकिन शेर का जुनून पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। वो राजदान के साथ मिलकर खुफिया तौर पर टैंकर और ड्राइवर की तलाश शुरू करेगा जिसने रंगून वाला और फजर को निशाना बनाया। यहाँ शेर को कुछ ऐसे गवाह मिलेंगे जो बराह रास्त बदज़मान के आदमियों की तरफ इशारा करेंगे। ये वो लम्हा होगा जब शेर के पास सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी, लेकिन बदज़मान भी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेगा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि शेर सबूत के करीब पहुंच गया है तो वो शेर को रोकने के लिए एक और ख़तरनाक वार करेगा। इस बार वो सीधा शेर की जान लेने की कोशिश करेगा। किस्त के आखिर में एक ऐसा धमाका खेज सीन दिखाया जाएगा जिसमें शेर पर कातिलाना हमला होगा और सब नाज़रीन ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या शेर इस हमले से बच पाएगा या नहीं। तो नाज़रीन, अब कहानी में नया मोड़ इस वक्त आएगा जब फजर अस्पताल के कमरे में ज़ख्मी हालत में लेटी होगी और शेर बार बार इसके पास आकर इसके खैरियत पूछेगा। फजर इसे देखकर कहेगी कि शेर, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम्हारे करीब रहने से ही लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं। लेकिन शेर जज्बाती अंदाज में जवाब देगा कि फजर, अगर तुम पर एक और वार भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो
ہو جائے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر فجر کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ اسے جانے کا کہے گی تاکہ مزید مسئلہ نہ بنے۔ تو ناظرین، دوسری طرف بدرزمان اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا یہ منصوبہ بنا رہا ہوگا کہ فجر اگر زندہ بچ گئی تو شیر مزید طاقتور ہو جائے گا، اس لیے اگلا وار پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہونا چاہیے۔ وہ اپنے آدمیوں کو حکم دے گا کہ فجر کے کمرے کے قریب پہرا دو اور موقع ملتے ہی اس کا کام تمام کر دو، لیکن بدرزمان کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ شیر پہلے ہی اس کے جال کو بھانپ چکا ہے اور ہسپتال کے باہر چپکے سے نگرانی شروع کر چکا ہے۔ ناظرین، اب ایک نہایت سنسنی خیز منظر یہ ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں بدرزمان کے آدمی ہسپتال میں داخل ہوں گے تاکہ فجر کو ختم کر سکے، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھولیں گے تو اندر شیر کھڑا ہوگا۔ یہاں شیر اور بدرزمان کے آدمیوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ شیر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فجر کو بچانے کی کوشش کرے گا اور اس جھڑپ میں شیر زخمی بھی ہو جائے گا، لیکن وہ فجر کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تو ناظرین، اس لڑائی کے بعد فجر پہلی بار دل سے مانے گی کہ شیر کی محبت اور قربانی سچی ہے، اور ساتھ ہی کہانی مزید آگے بڑھے گی، اور کیونکہ بدرزمان اب براہ راست شیر کے خلاف کھڑا ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ اگلی قسط میں شیر کو ایک ایسا خفیہ ثبوت ملے گا جس سے وہ بدرزمان کو بے نقاب کر سکے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ ثبوت شیر کے ہاتھ لگنے سے پہلے بدرزمان اسے تباہ کر دے گا یا شیر کامیاب ہو جائے گا؟ تو ناظرین، اب کہانی یہاں سے مزید شدت اختیار کرتی ہے۔ ہسپتال میں ہونے والی لڑائی کے بعد شیر زخمی تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے حوصلے میں مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ فجر، جو پہلے شیر کو خود سے دور رکھنے کی ضد پر قائم تھی، اب پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ شیر کی موجودگی ہی اس کی اصل حفاظت ہے۔ وہ نرم لہجے میں شیر سے کہتی ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو آج میرا انجام کچھ اور ہوتا۔ یہ سن کر شیر بھی اسے یقین دلاتا ہے کہ اب چاہے قیامت بھی آ جائے وہ اسے کسی صورت نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اور دوسری طرف بدرزمان کو خبر پہنچتی ہے کہ اس کے آدمی ناکام ہو گئے ہیں اور شیر نے نہ صرف فجر کو بچا لیا ہے بلکہ کچھ ثبوت بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ یہی خبر بدرزمان کو مزید خوفزدہ کر دیتی ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک خفیہ اجلاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر شیر تک یہ ثبوت پہنچ گئے تو ہمارا کھیل ختم ہو جائے گا، اب ایک آخری وار کرنا ہوگا، ایسا وار جس کے بعد شیر کبھی ہمارے سامنے نہ آ سکے۔ اسی دوران شیر اور راجدان ثبوتوں کو جوڑتے ہیں۔ شیر کو ایک ایسی فائل ہاتھ لگتی ہے جس میں ٹینکر کے مالک کا نام اور ڈرائیور کی معلومات درج ہوتی ہے۔ یہ سب براہ راست بدرزمان کے کاروبار سے جڑی ہوئی چیزیں نکلتی ہیں۔ اب شیر کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے والد کے قتل، رنگول والا کے حادثے اور فجر پر حملے کے پیچھے صرف اور صرف بدرزمان ہے۔ قسط کے آخری حصے میں شیر فجر سے ملنے آتا ہے۔ فجر اس کے زخم دیکھ کر کہتی ہے وہ اس لڑائی کو ختم کر دو ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، لیکن شیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے اب یہ جنگ ختم نہیں ہوگی فجر، یہ جنگ میرے بابا کے خون کی ہے اور یہ جنگ تم پر کیے گئے وار کی ہے، اور جب تک بدرزمان کا آخری سانس نہ نکلے میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو ناظرین، یہ اعلان اس بات کا اشارہ ہوگا کہ آنے والی قسط میں شیر اور بدرزمان کے درمیان براہ راست ٹکراؤ شروع ہونے والا ہے، جس میں نہ صرف خون بہے گا بلکہ کئی راز بھی کھلیں گے۔ تو ناظرین، اگلی قسط کا سب سے اہم لمحہ وہ ہوگا جب شیر ثبوت ہاتھ میں لے کر براہ راست بدرزمان کے سامنے جا کھڑا ہوگا، اور یہ ملاقات رات کے سناٹے میں بدرزمان کی حویلی کے باہر ہوگی۔ جیسے ہی شیر وہاں پہنچتا ہے بدرزمان اپنے پہرے داروں کو روک کر خود آگے آتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوتے ہیں۔ شیر غصے سے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرے بابا کے خون کا قاتل تم ہو، رنگون والے کو تم نے مروایا اور فجر پر حملہ بھی تمہاری چال تھی۔ بدرزمان اب حساب کا وقت آ گیا ہے۔ بدرزمان طنزیہ ہنستے کر جواب دیتا ہے تم شیر کہلاتے ہو لیکن حقیقت میں تم ایک ضدی بچے ہو، تمہارے بابا کمزور تھے اس لیے مر گئے، رنگون والا غدار تھا اس لیے ختم ہوا، اور فجر اگر وہ اب تک زندہ ہے تو وہ میری نرمی ہے، لیکن یاد رکھو شیر اگلا وار تمہارے دل پر ہوگا، تم اپنی آنکھوں سے فجر کی لاش دیکھو گے اور اس کے بعد خود زمین پر گر جاؤ گے۔ اور یہ سن کر شیر کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر بدرزمان کی گردن پکڑ لیتا ہے اور پہرے دار ہتھیار نکالتے ہیں، مگر بدرزمان ہاتھ اٹھا کر انہیں پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ وہ شیر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے کیا کرو گے، مار دو گے مجھے؟
लेकिन याद रखो मेरे आदमी तुम्हारे चारों तरफ हैं, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें गोलियों से छन्नी कर दूँ। शेर धीमे मगर पुरअज़म लहजे में कहता है, बदज़मान मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ जुर्म का हिसाब कानून और मेरे हाथों एक साथ हो। मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे कि शेर ने अपने दुश्मन को कैसे अंजाम दिया। लेकिन ये याद रखना, अब तुम्हारी रातें सुकून की नहीं रहेंगी, हर सांस तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी और बहुत जल्द तुम अपने अंजाम तक पहुँचोगे। तो नाज़रीन, ये मुकालमा दोनों किरदारों के दरमियान जंग का बाकायदा आगाज़ होंगी। अगली किस्त में बदरज़मान शेर पर एक बराह रास्त हमले की तैयारी करेगा, जबकि शेर फजर को अस्पताल से कहीं और महफूज जगह मुंतकिल करने का फैसला करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या शेर फजर को बचा पाएगा या बदरज़मान का वार कामयाब हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब कहानी एक खतरनाक रुख तय कर लेती है। बदरज़मान को जब ये यकीन हो जाता है कि शेर के पास इसके ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, तो वो एक आखिरी चाल चलता है। रात की तारीकी में जब फजर अस्पताल के कमरे में अकेली बैठी होती है, अचानक बिजली बंद हो जाती है। इस अंधेरे में बदरज़मान के आदमी कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं और फजर को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। फजर चीखती है, लेकिन शोर दबाने के लिए इसे बेहोश कर दिया जाता है। जब सुबह शेर अस्पताल पहुंचता है तो इसे फजर के गायब होने की खबर मिलती है। शेर का खून खोल उठता है और फ़ौरन राजदान को साथ लेकर बाहर निकलता है और वैली का रुख करता है। रास्ते में शेर को बदरज़मान की एक धमकी आमेज़ कॉल आती है, शेर अब खेल ख़त्म होने वाला है, फजर मेरी कैद में है और अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और इसे मुझसे छीन कर दिखाओ। लेकिन याद रखना, यहाँ आने का मतलब है मौत से मुकाबला। ये कॉल सुनकर शेर आग बगोला हो जाता है। वो कहता है, बदरज़मान तुमने अपनी कब्र खुद खोद ली है, मैं आ रहा हूँ और इस बार ये जंग मौत तक होगी। किसके आखिरी मंजर में दिखाया जाएगा कि बदरज़मान फजर को एक वीरान मकान में कैद रखता है। इसके हाथ रस्सियों से बंधे हैं और वो कमज़ोर हालत में है। बदरज़मान तंज़िया लहजे में कहता है, शेर के गरूर को तोड़ने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपनी मोहब्बत को मेरे कदमों में मरता हुआ देखे। दूसरी तरफ शेर हथियार तैयार करता है। वो अपनी ज़ख्मी हालत के बावजूद लड़ने की कसम खाता है और ऐलान करता है, ये जंग सिर्फ शेर और बदरज़मान के दरमियान नहीं है, ये जंग मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान है और मैं अपनी मोहब्बत को मरने नहीं दूंगा। अब आने वाली किस्त में शेर और बदरज़मान के आमने सामने आखिरी लड़ाई होगी, जिसमें गोलियां चलेंगी, धोखे होंगे और कई राज खुलेंगे। तो नाज़रीन, अब किस्त का आगाज़ एक खौफनाक मंजर से होगा। फजर एक वीरान कमरे में बंधी हुई है, इसकी आंखों में आंसू है और होंठों पर बस एक ही दुआ है कि शेर इसे बचाने आ जाए। दूसरी तरफ बदरज़मान अपने आदमियों के साथ तैयार बैठा है, इसके हाथ में बंदूक है और चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कुराहट। वो अपने आदमियों से कहता है, आज के बाद शेर का गुरूर हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो देखेगा कि इसकी मोहब्बत मेरी गोलियों के सामने दम तोड़ देती है। इसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से टूटता है और शेर अंदर दाखिल होता है। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, हाथ में बंदूक है, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही ख्याल है, फजर को हर हाल में बचाना है। जैसे ही शेर आगे बढ़ता है, बदरज़मान कह के लगाता है, आ गया शेर, लेकिन आज ये शेर खुद अपने खून में नहा कर मरेगा। तो नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, फायरिंग शुरू हो जाती है, गोलियां चारों तरफ चलती हैं। शेर कई आदमियों को गिराता हुआ आगे बढ़ता है। बदरज़मान के बेटे भी लड़ाई में शामिल होते हैं, लेकिन शेर का जुनून सब पर भारी पड़ता है। वो ज़ख्मी होने के बावजूद हार नहीं मानता। इसी दौरान एक गोली फजर के करीब लगती है, वो चीखती है और शेर दीवाना वारिस की तरफ लपकता है। बदरज़मान मौका देखकर शेर पर हमला करता है, दोनों आमने सामने आ जाते हैं। हाथापाई शुरू हो जाती है। शेर और बदरज़मान एक दूसरे को ज़मीन पर पटक देते हैं। ज़ख्मों से खून बह रहा है, लेकिन दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, आखिरकार शेर बदरज़मान को काबू में कर लेता है। वो बंदूक बदरज़मान के सर पर तान कर चीखता है, ये मेरे बाबा के खून का हिसाब है, ये रंगून वाले के खून का हिसाब है और ये फजर पर वार का हिसाब है। आज शेर का फैसला सुनने के लिए ना अदालत है ना काजी, आज सिर्फ मेरा इंसाफ होगा। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
फजर आंसुओं में डूबी हुई शेर को रोकती है। शेर, इसे मारने से तुम मेरे शेर नहीं रहोगे, तुम भी जैसे जालिम बन जाओगे। प्लीज़ रुक जाओ, ये लम्हा कहानी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। शेर के हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में गुस्से और मोहब्बत की लड़ाई चलती है। आखिरकार शेर बंदूक नीचे गिरा देता है और कहता है, मेरा इंतकाम ये नहीं कि मैं तुम्हें मार दूँ, मेरा इंतकाम है कि तुम जिंदा रहो और अपनी जिल्लत बरी हार देखो। इस वक्त पुलिस आ जाती है। राजदा ने इतला दी होती है कि और बदज़मान को हथकड़ियाँ डाल दी जाती हैं। फजर दौड़कर शेर के गले लग जाती है और कहानी एक जज्बाती मोड़ पर ख़त्म होती है कि आखिरकार शेर ने अपनी मोहब्बत को बचा लिया, अपने दुश्मन को कानून के हवाले कर दिया। एक तरफ फजर अस्पताल के बिस्तर पर आंसू में डूबी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता कहती है कि शेर, अगर तुम बार बार मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डालोगे तो मैं ये बोझ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरफ शेर, जो गुस्से और दर्द से भरा हुआ है, बंदूक हाथ में लिए बदरज़मान के सामने खड़ा है और गिरजदार आवाज़ में कहता है, बदरज़मान, अब हिसाब का वक्त आ गया है कि मेरे बाबा के खून का हिसाब है, यह रंगून वाले का हिसाब है और ये फजर पर किए गए वार का हिसाब है। बदरज़मान तंसिया हंसी के साथ कहकर लगाता है और शेर को ललकारते हुए कहता है, शेर, तुम शेर कहलाते हो, लेकिन आज तुम भेड़िए की मौत मरोगे। तुम्हारी मोहब्बत मेरी गोलियों के सामने दम तोड़ देगी। इसके बाद फायरिंग शुरू होती है, गोलियां चलती हैं, शेर टूटते हैं और धुआं पूरे कमरे को ढांप लेता है। फजर खौफ से चीखती है। शेर अगला मंजर दिखाता है कि शेर और बदरज़मान आमने सामने है, एक दूसरे को ज़मीन पर पटक रहे हैं, खून में लथपथ, लेकिन दोनों हार मानने को तैयार नहीं। शेर गुस्से से चीखता है और लड़ाई आखिरी है, बदरज़मान अब फैसला होकर रहेगा। नाजरीन, आखिर में पुलिस के सायरन की आवाज़ें गूंजती है, हथकड़ियाँ नजर आती हैं, फजर रोती हुई शेर के गले लग जाती है, लेकिन साथ ही पस मंज़र की आवाज़ें नाजरीन के दिलों में एक सवाल छोड़ देती है, क्या शेर वाकई अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा या बदरज़मान अपने अंजाम तक पहुँच जाएगा? ये सब जानने के लिए देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल शेर की अगली किस्त। नाजरीन, शेर आपका पसंदीदा चैनल पर। अब कहानी का अगला हिस्सा नहायत ही जज्बाती और खतरनाक होगा। बदरज़मान को पुलिस हथकड़ी लगाकर ले जाती है, लेकिन वो जाते जाते शेर को ललकारता है कि ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, मेरा खून मेरे बेटों के रगों में दौड़ रहा है, वो तुम्हें कभी सुकून से जीने नहीं देंगे। ये सुनकर शेर के चेहरे पर संजीदगी और गुस्से के मिले जुले तासुरात होते हैं। वो फजर की तरफ देखता है, जो अब भी सहमी हुई है। शेर इसे तसल्ली देते हुए कहता है, फिक्र ना करो फजर, अब तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। फजर के घर वाले, ख़ास तौर पर इसके वालिद, शेर को इल्ज़ाम देते हैं कि अगर वो फजर की ज़िंदगी में ना आता तो आज ये सब ना होता। फजर रो रो कर अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है कि शेर ने इसकी जान बचाई है, लेकिन इसके वालिद का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं होता। वो ऐलान करते हैं कि फजर को शेर से दूर रखा जाएगा, वरना वो बेटी से भी ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। ये बात फजर के दिल को तोड़ देती है। इधर बदरज़मान जेल में भी चैन से नहीं बैठता। वो अपने बेटों और आदमियों को खुफिया पैगाम भिजवाता है कि शेर और फजर को ख़त्म करने के लिए वो बाहर से कार्रवाई करें। इस दौरान शेर को पता चलता है कि जेल के अंदर भी बदरज़मान को मुकम्मल सहूलतें दी जा रही हैं। वो अंदर बैठे बैठे सारा खेल चला रहे हैं। शेर राजदान से कहता है, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बदरज़मान का जाल अभी टूटा नहीं, अगर हमने जल्दी कुछ ना किया तो वो फिर वार करेगा। तो नाज़रीन, अगले मंजर में दिखाया जाता है कि बदरज़मान के बेटे एक नई साजिश तैयार करते हैं। इनका मंसूबा यह है कि फजर को दोबारा गवाह किया जाए ताकि शेर को एक बार फिर कमज़ोर किया जा सके। लेकिन इस बार शेर पहले ही खबरदार होता है और फैसला करता है कि वो फजर को हर हाल में महफूज जगह मुंतकिल करेगा। किस्त के आखिर में एक सनसनीखेज मोड़ आएगा जब शेर और फजर एक गाड़ी में जा रहे होते हैं और अचानक पीछे से चंद मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश इनका पीछा शुरू कर देते हैं। गोलियां चलती हैं, गाड़ी की खिड़कियां टूटती हैं और फ़ज़ा में खौफनाक चीखें गूंजती हैं। फजर खौफ से शेर का हाथ पकड़ती है और शेर दंद निचाते हुए कहता है, बदरज़मान, चाहे तुम्हारे हज़ारों वार हूँ, शेर कभी हारने वाला नहीं। तो नाज़रीन, गाड़ी पर होने वाले हमले के बाद शेर बामुश्किल फजर को बचाकर एक महफूज मकाम तक ले जाता है। गोलियां गाड़ी के शीशों को चीरती हुई गुजरती हैं, लेकिन शेर अपनी जान की परवाह किए बगैर फजर को अपनी बाहों में छुपा लेता है। जैसे ही वो एक वीरान गोदाम में पनाह लेते हैं, फजर कांपती हुई आवाज़ में कहती है, शेर, ये सब ख़त्म क्यों नहीं हो रहा?
बदज़मान तो कैद में है, फिर भी इसके आदमी हमें चैन से जीने नहीं दे रहे। शेर इसके आंसू पूंछते हुए कहता है, फजर, बदज़मान की जड़ें बहुत गहरी हैं, जब तक मैं इन्हें जड़ से नहीं उखाड़ूंगा ये जंग ख़त्म नहीं होगी। इसी दौरान पुलिस का एक एहलकार शेर को खुफिया तौर पर इतला देता है कि बदज़मान के बेटे शहर के बाहर एक पुरानी कोठी में इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ एक बड़ा मंसूबा तैयार किया जा रहा है। शेर फैसला करता है कि वो इस बार इनका मुकाबला तनहा नहीं करेगा, बल्कि कानून के साथ मिलकर यह खेल खत्म करेगा। लेकिन मसला यह है कि पुलिस के अंदर भी कुछ लोग बदज़मान के साथ मिले हुए हैं और शेर पर एतबार करना हर किसी के लिए आसान नहीं। तो नाज़रीन, इधर फजर के वालिद अपनी ज़िद पर काम है, वो अपनी बेटी को शेर से दूर ले जाने के लिए दबाव डालते हैं। फजर अपने वालिद के सामने डट कर कहती है, अब्बा, शेर ने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई, अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। ये सुनकर इसके वालिद खामोश तो हो जाते हैं, मगर दिल के अंदर एक नई जंग शुरू हो जाती है। अगला मंजर बदज़मान की कोठी का है, जहां उसके बेटे नहायत खुफिया अंदाज में हथियार और गाड़ियां तैयार करवा रहे हैं। वो आपस में कह रहे हैं कि इस बार वार आखिरी होगा, शेर या तो हमारी गोलियों का निशाना बनेगा या फिर हम अपने बाप का बदला लेकर रहेंगे। नाज़रीन, किस्त के आखिरी लम्हे में एक सनसनीखेज लम्हा आता है जब शेर फजर को महफूज मकाम पर छोड़कर अकेला बदज़मान के बेटों की कमीन गाह की तरफ निकलता है। रास्ते में इसकी गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो जाते हैं और गाड़ी अंधाधुंध वादी की तरफ दौड़ने लगती है। शेर पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश करता है और चीखता है, बदज़मान, तुम्हारे वार मुझे तोड़ नहीं सकते। और नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इसके साथ ही स्क्रीन स्लो मोशन में धुंधली हो जाती है, प्रोमो की आवाज़ गूंजती है। क्या शेर अपनी जान बचा पाएगा? क्या वो बदज़मान के बेटों के मकरूह मंसूबे को बेनकाब कर सकेगा? ये सब देखने के लिए देखना ना भूलिएगा अगली किस्त। तो नाज़रीन, गाड़ी के ब्रेक फेल होते हैं और शेर की गाड़ी तेज़ी से पहाड़ी रास्ते पर बेकाबू होकर लड़खड़ाने लगती है। लम्हा ब लम्हा मौत इसके करीब आती है, मगर शेर पूरी तक़व्वत से स्टीयरिंग को काबू में रखने की कोशिश करता है। आखिरकार गाड़ी सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर से टकराकर रुकती है, लेकिन ज़ोरदार धमाके से एयर बैग खुल जाते हैं और शेर ज़ख्मी होकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ फजर मुसलसल शेर को फूंक कर रही होती है, मगर कार नहीं मिलती। इसके बेकरारी बढ़ जाती है और वो दुआ करती है, या अल्लाह, शेर की हिफाज़त फरमाना और इसे मेरे पास वापस भेज देना। फजर की आंखों में आंसू और दिल में खौफ तूफान बन जाता है। इसी दौरान बदज़मान के बेटों को खबर मिलती है कि शेर का एक्सीडेंट हो गया है। वो खुशी से कहके लगाते हैं और कहते हैं, ये तो और भी अच्छा हुआ, किस्मत ने हमारा काम आसान कर दिया। अब हमें बस ये यकीन करना है कि शेर दोबारा खड़ा ना हो सके। वो अपने आदमियों को हदायत देते हैं कि शेर को ढूंढ कर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ एक राहगीर एम्बुलेंस को इतला देता है और शेर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। जब फजर को ये खबर मिलती है तो वो दीवाना वाला अस्पताल की तरफ भागती है। अस्पताल के कॉरिडोर में फजर की हालत देखने लायक होती है। वो हर डॉक्टर और नर्स से यही पूछती है कि मेरा शेर कैसा है, कुछ नहीं हुआ ना? डॉक्टर्स बताते हैं कि शेर को शदीद चोटें आई हैं, लेकिन इसकी जान खतरे से बाहर है। ये सुनते ही फजर सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है, लेकिन साथ ही एक नई मुसीबत सर उठा लेती है। बदज़मान के आदमी अस्पताल के बाहर पहुंच जाते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ताकि शेर को ख़त्म कर सकें। किस्त के आखिर में दिखाया जाता है कि शेर बेहोशी की हालत में है। फजर इसके पास बैठी दुआ कर रही है और अस्पताल के बाहर दुश्मनों की काली गाड़ियां रुकती हैं। कैमरा फजर के खौफजदा चेहरे पर जूम करता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो नाज़रीन, क्या शेर अस्पताल के अंदर महफूज रहेगा? क्या बदज़मान के बेटे अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे? देखना ना भूलिए अगली किस्त में। तो नाज़रीन, अस्पताल के बाहर से गाड़ियाँ आकर रुकती हैं। बंदूक बरदार आदमी आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुसने लगते हैं। अंदर फजर शेर के बेड के पास बैठी मुसलसल कुरान की तिलावत कर रही होती है। अचानक अस्पताल का माहौल खौफनाक बन जाता है। नर्सें मजीद भाग दौड़ करने लगते हैं। फजर चूक कर बाहर देखती है तो इसे महसूस होता है कि जैसे खतरा बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ऐन उसी वक्त शेर नीम बेहोशी की हालत में हिलने लगता है। फजर इसके हाथ को पकड़ कर रोती है, शेर, आंखें खोलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
दुश्मन तुम्हें मारने आ चुके हैं। शेर ऐसा ऐसा आंखें खोलता है लेकिन अभी बोलने की ताकत नहीं पाता। इसकी नज़रें फजर पर जमी होती हैं और इसके होंठ हिलते हैं, डर मत। दूसरी तरफ पुलिस का एक ईमानदार अफसर जो पहले शेर की निगरानी के लिए तैनात था, अचानक मौके पर पहुंच जाता है और अपनी टीम के साथ अस्पताल के बाहर मोर्चा संभालता है। गोलियां चलने लगती हैं, अस्पताल के शीशे टूटने लगते हैं, चीखों पुकार मच जाती है। फजर खौफजदा होकर शेर के ऊपर झुक जाती है ताकि गोली इसे न लगे। तो नाज़रीन, बदज़मान के आदमियों का मकसद वाज़ेह होता है। कमरा नंबर 7 में शेर है, किसी भी सूरत ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। वो अंधाधुंध फायरिंग करते कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन पुलिस का अफसर शेर के लिए डर जाता है। वो एक ज़बरदस्त मुकाबला होता है। कई घंटों तक गोलियों की आवाज़ें अस्पताल की दीवारों से टकराती रहती हैं और इसी दौरान शेर को होश पूरी तरह आने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करता है लेकिन ज़ख्म इसे रोकते हैं। फजर घबरा कर कहती है, नहीं शेर, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। शेर दांत बीचते हुए कहता है, जब तक मैं खुद इनका सामना नहीं करूँगा ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। नाज़रीन, लम्हा दिखाया जाता है कि शेर अपनी जान का परवाह किए बगैर बेड से उठने की कोशिश करता है। इसकी आंखों में आग और लबों पर अज़म झिलकता है। फजर चीखती है शेर और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता इसके ज़ख्मी मगर पुरअज़म चेहरे पर जूम करता है। क्या शेर ज़ख्मी हालत में दुश्मनों का मुकाबला कर पाएगा या फजर अपने शेर को खोने से बचा लेगी? देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल शेर की अगली किस्त है। तो नाज़रीन, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अस्पताल के बाहर पुलिस और बदज़मान के आदमियों के दरमियान झड़प अरूज पर पहुँच जाती है। फ़ज़ा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठती है। अंदर अस्पताल के कॉरिडोर में धुआं और खौफ फैल जाता है। लोग जान बचाने के लिए दीवानावार भागते हैं। अचानक 2 नकाबपोश गुंडे सीधा शेर के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। फजर ये मंजर खिड़की से देख लेती है, इसका दिल धक से रुक जाता है। वो शेर के करीब आकर घबराहट में कहती है, शेर, वो लोग आ रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। शेर ज़ख्मी होने के बावजूद बिस्तर से उठने की कोशिश करता है। इसके चेहरे पर तकलीफ के साथ साथ एक अजीब सा जुनून नमाया होता है। वो कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा होता है। वो कहता है कि अगर मैं आज भी लेटा रहा तो कल तुम्हें और मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। इतने में कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। बदज़मान के बेटे अंदर दाखिल हो जाते हैं। इनके हाथों में बंदूकें हैं और आंखों में शफाकियत। बड़ा बेटा तंसिया मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो ये है वो शेर जिससे सब डरते हैं। आज देखें ज़ख्मी शेर में कितनी ताकत बाकी है। फजर खौफज़दा होकर शेर के सामने खड़ी हो जाती है और देखती है, किसी ने इसे हाथ लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन दुश्मन हंसी उड़ा देते हैं। एक गुंडा फजर को धकेलने की कोशिश करता है मगर शेर पूरी ताकत लगाकर इसे ज़मीन पर पटक देता है। कमरे में ज़बरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। शेर ज़ख्मी होने के बावजूद एक एक करके दुश्मन को गिरा देता है, लेकिन अचानक बड़ा बेटा अपनी बंदूक सीधी शेर के सीने पर तान देता है। लम्हा भर के लिए कमरे का मंजर साकित हो जाता है। फजर की चीख गूंजती है नहीं और इसी लम्हे बाहर से पुलिस अफसर दौड़ते हुए अंदर दाखिल होता है। गोली जलने की आवाज़ गूंजती है। किस्त का अख्ताम इसी सनसनीखेज लम्हे पर होता है, ये राज छोड़ते हुए कि गोली किसको लगेगी। क्या शेर दुश्मन की गोली का शिकार हो गया है? क्या किस्मत ने एक बार फिर बदज़मान के बेटों को नाकाम बना दिया? जानने के लिए देखते रहिए शेर। तो नाज़रीन, कमरा गोली की आवाज़ से लर्ज उठता है। फजर खौफ से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो हिम्मत करके आंखें खोलती है तो देखती है कि शेर के बजाय बदज़मान का बड़ा बेटा ज़मीन पर गिरा हुआ है और इसके हाथ से बंदूक छूटकर दूर जा गिरी है। पुलिस अफसर आगे बढ़कर बाकी गुंडों को बाकाबू में कर लेता है। शेर थकन और ज़ख्मों के बायस दोबारा लड़खड़ा कर बेड पर गिर जाता है। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो नाज़रीन, फजर दौड़कर इसके करीब आती है और रोते हुए कहती है, मैं डर गई थी शेर, मुझे लगा आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। शेर कमज़ोर आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहता है, शेर को कोई इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, लेकिन इसकी आंखों में अभी भी एक अनजाना सा खौफ छुपा होता है। दूसरी तरफ बदज़मान को खबर पहुंचती है कि इसका बेटा अस्पताल में ज़ख्मी होकर गिरफ्तार हो गया है। वो गुस्से से कुर्सी उल्ट देता है और दौड़ते हुए कहता है कि ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब मैं खुद मैदान में उतरूँगा और इस बार शेर को इसकी मोहब्बत समेत ख़त्म कर दूँगा। तो नाज़रीन, अगर आप